So hello sir. First of all, I would like to welcome you on my YouTube channel. So कैसे हैं आप सर? I'm doing good. I तो am प्लीज सर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दें कि आप इंडियन एयरफोर्स से कैसे जुड़े हुए हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं एंड कितना लंबा टेन्योर आपका सर्विसेज के अंदर रहा है. sure. I am Wing Commander Rajagopal, and I have served as a flight navigator in Indian Air Force. And basically, I have operated an aircraft called AN-32. You all must have heard about this aircraft. And as a navigator, my role mainly involved paratrooping of supplies in our border areas, both in the eastern sector like Arunachal Pradesh border, and also in the northern sector. आजकल जो गलवान वैली, अक्सर चिन, ये लोग जब न्यूज में आ रहे हैं ना, सो वहां पे हमने काफी ऑपरेट किया. Now, after my flying tenure was over, I was trained to become a group testing officer, GTO, and I have served two tenures, one in Air Force Selection Board Dehradun, and thereafter I have also served in Air Force Selection Board Mysore. And also, in addition to that, I served in the Air Force headquarters, taking care of all the selection activities of Air Force. So, matlab, starting from even specifying what is the entry level qualifications, even deciding that, till finally I used to sign the joining letter for joining the Air Force Academy. So, matlab, I used to do Okay. full set of activities starting from advertisement to written exam to interview to medical to finally putting them in the Air Force Academy. Matlab, I have seen the full scope of selection activities. सो सर का जो सर्विसेज में सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो टेन्योर रहा है वो दो जगह रहा है. वन इज द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एंड द अदर वन इज द मैसूर बोर्ड. Yes. और आफ्टर द जीटीओ पार्ट वाज ओवर, सर जो है पूरा जो आपका, जैसे आप एनडीए जाते हैं, एनडीए के बाद आप एएफए जाते हैं, तो एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भी जो हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है, वहां तक की ज्वाइनिंग लेटर पे भी सर के सिग्नेचर वहां पे होते थे. तो सर वाज द इंचार्ज पूरा. ठीक है, तो सर को सर्विसेज से बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है. तो और आज आपके सारे डाउट मैं सर के साथ भी ले लूँ. सर यू आर दी जीटीओ, और जीटीओ मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे हिसाब से एसएसबी का. और लगभग 60% एसएसबी आपका जीटीओ है, क्योंकि 2 दिन हमारे पूरे जीटीओ रहते हैं. Absolutely. तो सर फर्स्ट दिन एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डज अ जीटीओ एक्सपेक्ट फ्रॉम एन कैंडिडेट? Okay. Now, what does the GTO expect from the candidate? The GTO expects the same thing which the interviewing officer as well as the psychologist expects. He expects officer-like qualities. Okay. Now, what is officer-like qualities? मैं simple चीज से बता रहा हूँ. Okay, there are basically 4 things which are required in officer-like qualities. पहली बात है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए. First, okay. Second, what is required? You have to be friendly with others and you should be able to get along with others comfortably, because Air Force is all about group activity. So you have to be able to connect with others and be friendly and be comfortable with others. Third is you have to be able to take some leadership activities. Like for example, you should not wait for somebody to tell you what to do. अगर आपको जो लगता है कुछ अपने आप भी कुछ करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज अ लीडर. लीडर और फॉलोअर का फर्क यही है. तो फॉलोअर जस्ट वेट्स फॉर समबडी टू टेल हिम व्हाट टू डू. लीडर अपने आप करता है. यही जो मेन चीज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर. एंड द फोर्थ एंड ऑल्सो द इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आपके हिसाब से चल नहीं रहा है कुछ चीज, आप क्या करते हो? पूरा फंक होके बैठ जाते हो या उड़ जाते हो? हमें क्या चाहिए? हमें जो बंदा चाहिए जो even when the chips are down, he gets up quickly and fights back. Correct? Okay. That is what the GTO sees.
तो सर स्टूडेंट्स ऑफन एक प्रॉब्लम उनके दिमाग में आती है कि जो 15 वी हैव 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को वो क्या करते हैं, एक पेन पेपर लेके राइट डाउन करते हैं, उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस में मैं अपनी स्टोरीज के अंदर इसको डाल दूं, अपने बिहेवियर के अंदर कैसे कोशिश करूं. सो व्हाट डू यू थिंक सर, दिस इज दिस अ राइट वे टू इनकलकेट ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन? बिल्कुल, मैंने जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोला, जो 4 चीजें हैं वही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है. ओके. एक्चुअली पता है क्या, ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और DIPR brought all the qualities, maybe hundreds of qualities. उसके बाद उसको 100 plus qualities you cannot assess. So what they did, they started putting them together, and finally they came down to 15. सबको चीज भी बता दिया 4 लाइन में क्या चाहिए, बस 15 ये सब. आप क्यों, आप GTO बनना है या SSB में पास होना है? Can you first realize that? Do you want to become a GTO or IO or the psychologist, or do you want to get recommended in the SSB? If you want to get recommended in the SSB, there is no point in doing what the GTO is trying to do. Right. Most of the students का problem यही है, वो लोग सोचते हैं मैं GTO का क्या क्या वो देख, उसको मैं देखता हूँ और बिल्कुल उनको मैं किसी न किसी तरीके से ये कर दूंगा. वो गलत बात. Up to, I hope I am trying to explain it in a very simple term. Right. Absolutely right, sir. Okay. Moving ahead, sir. GTO में मेन पार्ट आपका PGT, HGT, FGT, जो फट्टा बल्ली वाला टास्क है. सर आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो है वो पहले से इसको प्रैक्टिस करके आए या वहीं पे जाके उसको वहीं पे ट्राई करना चाहिए? मतलब उसको एक रफ आइडिया होना चाहिए या पूरा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि कैंटिलीवर कैसे बनेगा, ब्रिजिंग कैसे करेंगे, रूल्स क्या क्या होंगे? सो सर ये क्या होना चाहिए? बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोस्ट कैंडिडेट और ट्रेंड कैंडिडेट में मेरे हिसाब से फर्क होता है. कोचिंग तो दे दी, जिसको रटवा दिया कि भाई ऐसा ही करना है. ट्रेनिंग में तो उसको समझा दिया. सो सर ट्रेनिंग जरूरी है या कोचिंग जरूरी है? ओके, अर्पित जी मैं ऐसे बोलता हूँ. Once you become a GTO and you are experienced, I can assess a candidate. I can put, let us say, 8 students together and keep one drum of water on one side. ठीक है, और दूसरे कोने में मैं एक empty drum रखता हूँ. लोगों को 2-4 बकेट मग देता हूँ और लोगों को बोलता हूँ इधर से पानी, without spilling you should take the water to the other drum. You should, all the water from this drum should go to the other drum. This is a group testing task. I can just do it, and based on what you are doing, I can find out what you are. अब वैसे मैं सिंपल चीज बताता हूँ. GTO का फंडा क्या है, ग्रुप टेस्टिंग का फंडा क्या है? इट इज नॉट यूज्ड anywhere else except the armed forces. It has come from the British system. ठीक है, उनका फंडा यही है. अगर मान लो 10 बच्चे जा रहे हैं कहीं, दे कम टू योर क्लास, फॉर एग्जाम्पल NDA क्लास के लिए, आपका जो रिटर्न क्लास के लिए 10 बच्चे आ रहे हैं. ओके, शाम, ठीक है, आपका क्लास खत्म हो गया. सो ऑल द 10 स्टूडेंट दे डिसाइड टू डू सम एक्टिविटी. अगर मान लो क्या करता है, एक बंदा बोलता है चल मूवी चलते हैं, दूसरा बोलता है नहीं यार इधर कुछ मॉन्यूमेंट है उधर, वो जाके देखते हैं. पंजाब आ गया तो पंजाब में खाना चाहिए, ढाबा में जाके खाना खा लेते हैं. ठीक है, एवरीबडी इज डिस्कसिंग, ग्रुप डिस्कशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल थिंग. फिनिश्ड. नाउ उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद प्लानिंग करता है. चल उन्होंने फाइनली कुछ डिसाइड कर लिया, मूवी देखना है. अब ना हो क्या, कौन सा मूवी देखना है, ये पास में है, ये थिएटर दूर है, ये पास है, ये इधर है, वो उधर है. पहले ये कर सकते हैं, बाद में ये कर सकते हैं, ये तो बाद में भी कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है तो छोड़ देते हैं. तो व्हाट यू डू, यू आर डूइंग सम प्लानिंग. करेक्ट. So the second task which we are giving in the group task is what? Group planning exercise. We are planning.
और उसके बाद क्या करते हैं, उसको आउटडोर ले जाते हैं. अब it is not enough that you just plan, you have to execute it on ground. क्या करता है, एक बच्चा बोलता है मैं जाके पहले टिकट खरीद लेता हूँ, बाद में टिकट नहीं मिलेगा. एक बंदा दौड़ के जाता है, टिकट खरीद लेता है. दूसरा बंदा बोलता है मैं इसका ये बस का टाइमिंग्स वगैरह चेक करता हूँ, ठीक है, लोकल बस का या ट्रेन का. सो एक बोलता है मैं ट्रेन का चेक करता हूँ, एक बस का चेक करता हूँ. नहीं यार, हम 4 लोग मिलके एक कार में भी जा सकते हैं, समझ गए. So now they are all trying to execute the plan which they made. ग्रुप टास्क में भी सेम है, पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं. By the time you finish the whole process, what happens is boy will take its own place in the group. Initially everybody starts together. कुछ समय के बाद पता चलता है एक बंदा होगा जो whatever that boy says everybody will do. ए यार तू ना अर्पित, तू उधर जाके वर्क कर यार, नहीं नहीं ट्रेन नहीं चाहिए यार, ये करो. सो अपने आप the group itself starts selecting a leader. Now you can ask me another question. 8-10 लोग हैं, सारे लीडर कैसे हो सकते हैं? सारे लीडर नहीं हो सकते, बट at the same time, इसलिए तो GTO बैठा है. He is trying to see, can all 10 become leaders? Yes, possible. Okay. I have been able to explain to you the sequence of group testing in a simple manner. मतलब जो लेमैन को समझ में आता है उस टाइप I am trying to explain. तो पहले प्लानिंग, correct what you call terminology जो बुक में देते हैं, जो all those types of jargon which we use. I'm just trying to explain in normal हिंदी लोगों का समझने के लिए. ओके. तो सर स्टार्टिंग प्लानिंग से होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा. पहले डिस्कशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन. दिस इज द होल क्राइटेरिया ऑफ द जीटीओ. एंड जो लीडर दिखता है वहां पे, जिसकी बात ज्यादा ग्रुप समझते हैं, एंड ही इज द लीडर जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली रहता है, और पूरा ग्रुप एक लीडर की तरफ उसकी बात सुनने लग जाता है. मैं एक चीज बोलता हूँ, इसमें लोगों का गलतफहमी हो जाती है. इसका मतलब 8 लोगों में से एक ही सिलेक्ट होगा, 2 सिलेक्ट हो गए. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ऑल 10 can be leaders. Okay. It is not that only one person has to be a leader. किसी मैटर में एक बंदा लीड कर सकता है, किसी में कोई और लीड कर सकता है. It is possible. It is not necessary that एक बंदा सब कुछ बोलेगा and so that means only one boy will get recommended. No, I have even recommended all the 8 students in my batch. In one particular batch in Dehradun, I have recommended all the 8 students. उनमें से 7 students got recommended by the board. Okay. एक बच्चा जो है recommend नहीं हुआ, वो due to the conference, वो probably interviewing officer या psychologist ने उसको पास नहीं किया. So it is not that एक ही लीडर हो सकता है और बाकी सब followers, ऐसा नहीं है. You show your leadership qualities. Okay. सर एक मेरा क्वेश्चन और कॉमन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन. सर एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो प्रॉब्लम ये बच्चों को होती है कि नॉलेज नहीं है, बिकॉज जीडी ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट द नॉलेज यू हैव. उसके बिना तो ग्रुप डिस्कशन आप कर नहीं सकते अगर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं. तो वो टॉपिक्स कैसे कैसे बच्चे को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपके रेफरेंस से कि वो नॉलेज गेन करे जो एसएसबी के अंदर उसको फायदेमंद रहे. ये बिल्कुल ना, अगर मान लो मैंने बता दिया आपको you need knowledge about preparation of sending rocket to moon, 10 दिन में कर सकते हो क्या? या 12 स्टैंडर्ड बच्चे से होगा क्या? नहीं होगा, उसमें बहुत सारे तीटे हैं. So whatever group discussion topics we are giving are absolutely in line with the students whom we are testing. That is one thing. Means वो जो topics है, वो जो discussion topics which we are giving, it is something which we feel that every 12th standard boy who comes for a NDA
entrance in the SSB will automatically know. Will अपने आप मतलब it's you don't need to prepare. Preparation क्या preparation करना है तो जब आप छोटे से हो right from your fourth standard onwards start reading newspapers, start reading the editorials, start understanding the various issues, start understanding हर चीज को you start 2-4 दिन में you say I want to these are the topics only will come. All topics which come will be in your thinking process only. Okay. If a boy is coming for NDA, we will only ask about some student, some career, something about football, or which is better, or cricket is better, or football is better, or why only cricket is being played in India, or does it require any great knowledge? No. Why only cricket is played in India? Why not why something is not popular in India or something? Why we are not got so many Olympic medals? Depending on although we have so much of population, हमारा hardly एक दो Olympic medal है, gold medal. So it will be topics like this which we think any NDA student should know, or he should have an opinion on that. That's all. Right. Okay. तो आगे चलते हैं सर. एक मेरे को सर एक प्रॉब्लम जो बच्चे ने मेरे से पूछी थी. बिल्कुल. He said, sir, कि I went to the SSB. I saw the GTO wearing black color sunglasses. Say again. Black? Black color sunglasses. Okay. So what is the reason behind that, sir? Why is he wearing those? मतलब मैं 3 बार SSB देखे आया and तीनों बार मैंने देखा the GTO is wearing a black color Ray-Ban. All GTOs wear black color Ray-Ban. All GTOs wear what? धूप है, पहनते हैं. धूप पे बैठना पड़ेगा, पूरे दिन बैठना है. The student is only sitting for one day, but we are sitting there all days, 365 days a year. So धूप पे बैठते, चश्मा पहनते. Because I personally saw one video on YouTube where a guy was telling कि ये GTO ऑफिसर इसलिए सनग्लासेस पहनते हैं ताकि जो आई बॉल्स है वो बच्चे को दिखे ना कि वो कहाँ देख रहे हैं. I thought कि इसके पीछे एक GTO ऑफिसर ही बता सकते हैं साइकोलॉजी क्या है. अगर मान लो बच्चा का दिख भी जाता है किधर देख रहा है, उससे क्या होगा? वो कुछ अलग से कुछ करने वाला है क्या? नहीं. He is going to do the thing which is now it comes to the another topic which although you have not asked, I want to explain this to you. Right. ठीक है. अब the main thing is GTO task में that don't try to do anything for the GTO. Let me give you a small example. I'll tell you, अगर मान लो आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, you are a good batsman, ठीक? Now you go there and bowler आ रहा है, पेस बॉलर वहां से बॉल लेके दौड़ के आ रहा है. आप क्या करते हो? आप बॉल नहीं देख रहे हो, but you are looking at the scoreboard. You are looking at the scoreboard. अरे यार, I am only 10 runs. Okay, how should I make it 11? अब क्या होगा? Ball will come and hit you a stump and you will get clean bowled. So क्या करना चाहिए? जब बॉल आता है, scoreboard मत देखो. You look at the ball and play. Right. Same thing goes for the GTO. Don't always keep thinking of getting recommended. वो नहीं है. वो that is not the correct way. GTO has told you what to do. You have to go from here to there. You have to carry the balli, pang, fata, load, etc. He's given you so much of briefing. But आप क्या करते हो? वो GTO जो बोल रहा है वो उसको सुन नहीं रहे हो. आपका मन में यही चल रहा है कैसे रेकमेंड हो जाऊं. इसको जीत कुछ ना तीटा लगा के मैं कुछ तीटा लगा के जीत रेकमेंड कर देता हूं. Somehow I should get recommended. That somehow getting recommended will not help. Okay. So please don't look at the scoreboard. Please focus on the bowler and the ball. But the scoreboard recommend तो आप अपने आप हो जाओगे if you do your task well. Right. Okay. सर एक क्वेश्चन और है. जैसे कमांड टास्क होता है, कमांड टास्क से पहले जीटी ऑफिसर कुछ ना कुछ 3-4 सवाल तो पूछता है. बिल्कुल. मतलब उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है कि वो 3-4 क्वेश्चंस आपसे कमांड टास्क से पहले जीटी ऑफिसर पूछ रहा है?
अभी तक जीटीओ ने किसी भी एक स्टूडेंट को के साथ बात नहीं किया, मीन्स बात नहीं किया मतलब टिल नाउ ही हैज ओनली स्पोकन एज अ ग्रुप, ही हैज नॉट स्पोकन टू एनी वन पर्सन इंडिविजुअली. अब क्या है, नाउ कमांड टास्क इज वन टास्क वेयर यू नो बच्चे थोड़ा टेंशन में, अरे यार आई एम द कमांडर, आई हैव ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइन. सो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कूल डाउन. क्या बात करते हैं मैक्सिमम, अरे यार कहाँ से आ रहा है, तो क्या you have how many brothers and sisters you have, so you know we only talk about nice things. Okay. We are trying to take his mind off the task basically. Do so, kuch aur socho, so that when you come to the command task you are fresh and ready. We want him to see the command task and take all, otherwise क्या है ना, वो preconceived notion इधर रहता है, अरे यार मैं कमांड टास्क में जाके ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, उसके बाद वो करूंगा. I am just trying to cool him off. I am trying to tell him, यार relax, relax. वो basically relaxation के लिए बात करते हैं, nothing else. Right. It is not some test, or I am not going to base my decisions based on what answers he is giving. Okay. That is not true. Okay. I am going to base my decisions based on what he is doing in the command task, not what answers he is giving before the command task. Okay. सर एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है वो ये है कि जैसे मैं सर कमांड टास्क देने गया था, ओके, आई नोटिस दिस थिंग दैट माइन द कमांड टास्क व्हिच वाज गिवन टू मी वाज वे मोर सिंपलर देन व्हाट इट वाज गिवन टू माय फ्रेंड. मतलब मुझे जो कमांड टास्क मिला था वो बहुत इजी था, मतलब मैंने फट्टा लगाया पार हो गया. वेयर अगर जो मेरा दोस्त था उसको काफी ज्यादा टीडियस कमांड टास्क मिला. तो ऐसा क्यों है सर कि उसको बहुत टीडियस मिला, मुझे बहुत सिंपल मिला? उसको खुश रहना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए अगर इजी हो गया तो. बट द मेन थिंग इज व्हाट दीज आर बेस्ड ऑन फॉर व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू असेस योर पर्सनालिटी. ओके, अगर मान लो आई हैव नो डाउट इन योर एबिलिटीज एट ऑल, बिल्कुल मैंने फैसला कर लिया भैया आप तो रिकमेंड हो, ओके, मैं क्यों सर फोड़ू, राइट, why give you a very very difficult task and you know make you do various other things. It is based on the GTO का aim क्या है, finally by the time he goes out of the GTO ground he should find out what are you, आप पर्सनालिटी वाइज कैसे हो, आर यू फिट टू बी रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एज एन ऑफिसर. दैट इज माई एम. उसके लिए जो चाहिए वो मैं करूंगा, जो नहीं चाहिए मैं नहीं करूंगा. सो द एंड ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन द चैंप, उसके हिसाब से जीटीओ ऑफिसर डिसाइड करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द चैंप एंड द जीटीओ का अगर डाउट ही नहीं है, बिल्कुल you are a recommendable person, then I will not waste my time giving you a very difficult task. Correct? Okay. Moving ahead sir, snake race के बारे में बात करते हैं. स्नेक रेस के अंदर हमें एक वॉर क्राई सिलेक्ट करना होता है. बिल्कुल. बिफोर द स्नेक रेस. बिल्कुल. एंड उसको स्नेक रेस पे बहुत जोश से बोलना होता है. ओके. तो सर स्नेक रेस के अंदर मतलब एक जीटीओ क्या नोटिस करते हैं, जो ज्यादा तेज से वॉर क्राई चिल्ला रहा है या जो टीम पार्टिसिपेशन में ज्यादा एक्टिव है? Again, I am saying the same thing for all NDA students. Now, GTO क्या देख रहा है? अगर GTO हर चीज में हर कुछ देख रहा है, suppose I want to see your courage, I don't have to wait till you do individual obstacles. कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं बाद में, ट्रेन में मिल जाता हूँ किसी को when I travel, and then sometimes even the students whom I have assessed, they come and sit in the same coach. So मैं उनसे बात करता हूँ. So पूछते हैं सर मैंने तो इतना ये किया है, वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मैंने 3 बार कर दिया वो पूरा चक्कर, बट आई डिडंट गेट रिकमेंडेड. बट somebody else he just did once around the whole thing and he got recommended. ये कैसे है? ये अगर मेरे को सिर्फ फिजिकल चीज देखना है, why should I do so much of group testing for 2 days?
I just have to keep on running race. And जो बच्चा पहले आ जाता है उसको मैं सेलेक्ट कर दो, क्या एक बिल्कुल जंप लॉन्च टाइप कर दो और सेलेक्ट कर दो. नो, इट इज टेक्निक. मैंने पहले भी बताया था ना, ग्रुप टास्क इज ग्रुप एक्टिविटी. Group activity. I am giving you various tasks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somebody may not be very great in planning, but may be very good at execution. राइट Good, somebody may not, maybe just about average in execution, but maybe बहुत दिमाग वाला बंदा है, बिल्कुल perfect plan करता है. समझ रहे हो ना? So it is possible. You and both of them could be recommendable if you are above a certain level. अगर एक बंदा बिल्कुल ही एग्जीक्यूशन में डफ है, फिर मैं कैसे उसको recommend कर सकता हूँ? बिल्कुल सिमिलरली एक बंदा प्लानिंग में बिल्कुल ही जीरो है, मैं recommend नहीं कर सकता. I want a person, an average person who can little bit, plan a bit, who can, do some execution, and किसी में अच्छा कर रहा है तो very good. I'm happy. ओके At least all the tasks you should meet the bare minimum standard. क्राइटेरिया. इतना, ओके and don't worry about what the GTOs see. GTO देख रहा है नहीं देख रहा है वो अपना मर्जी है. देखना, जो देखना चाहता है वो देख रहा है. That is very clear about what is to be seen in each candidate. किस चीज में डाउट है, किस ऑयल क्यू में डाउट है, उसको पता है, उसको वो देख रहा है. डोंट वरी अबाउट हिम, यू डू योर पार्ट. ओके. तो सर एसएसबी एक रिपीटर और एक फ्रेशन के अंदर कुछ डिफरेंशिएशन करता है? डिफरेंशिएशन यही है, अगर मैंने एक रिपीटर को डाल दिया इन अ फ्रेशर ग्रुप, क्या होगा, वो रिपीटर अपने आप एक लीडर टाइप लगेगा. समझ रहे हो ना? उसको लगेगा, मतलब वो सब कुछ वो बोलेगा, एंड ऑल द नए बच्चे हैं वो जो वो बंदा बोल रहा है उसी को सही मान के चलते रहेंगे. और शायद वो सही नहीं हो सकता है, सही नहीं होगा या सही होगा, जो भी है. सो वी आर जस्ट सेग्रीगेटिंग बिकॉज that is why I am saying that everybody has to be of the same type, some similar this thing. We take a lot of effort to see that there is a group is, we try to see that everybody has an equal level. Nobody should have an unfair advantage. ये सब हम देखते हैं before making the group. No one student should have very unfair advantage. अगर मान लो एक सुपीरियर एक कंप्यूटर इंजीनियर को डाल दिया in the midst of 10+2 kids, so क्या होगा, वो बंदा तो already is a mature guy and he knows how this thing works, and so the other boys do not get a chance to show themselves. I want everybody to get a equal chance to show themselves. Therefore I put all the repeaters together, I put all the freshers together. बिल्कुल, that's all, nothing. It's not a very big और हम कुछ साजिश नहीं कर रहे हैं. ओके ओके. तो सर एक और मेजर मिथ जो मैं चाहता हूँ आप ब्रेक करें. एक सिविलियन कैंडिडेट है और एक फौजी बैकग्राउंड से, या जिसके फादर आर्मी में ऑफिसर हैं या एयरफोर्स में ऑफिसर है. ओके. बी बच्चा वो है जिसके फादर एयरफोर्स में ऑफिसर है. ए बच्चा वो है जो सिविल बैकग्राउंड में है, जिसके फादर कभी आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है फौज से, बिजनेसमैन वाले बैकग्राउंड. ए और बी दोनों की दिलचस्पी है फौज ज्वाइन करने की. ओके. इन दोनों का इक्वल चांस मिलेगा फौज के अंदर, या बी को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे, ए को कम पे रखेंगे, कुछ ऐसा? बिल्कुल, आई कैन गारंटी यू बोथ ऑफ देम विल गेट इक्वल चांस. आई एम गोइंग वन स्टेप इवन फर्दर. अगर मान लो एक बंदा एक गांव से आ रहा है, एक रिमोट गांव इन समवेयर इन अरुणाचल प्रदेश. उसको वहां लाइब्रेरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, ट्रेन नहीं देखा. अरुणाचल प्रदेश में कई कई जगह है जहाँ ट्रेन भी नहीं देखा. ठीक. और दूसरा बंदा आ रहा है मुंबई से सब कुछ है, लाइब्रेरी है, ये है, वो है, टीवी है, जो चाहिए है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, सब कुछ है. हम फिर भी at the end of the thing, when we are carrying out assessment, when we are carrying out this thing, we take into consideration this, whether it is a defense background or civilian background, whether a rich person or a poor person. If from father from a very rich background,
father from a very poor background, a person from a very remote village, a person from a city. ये सब चीजें हम factor in करते हैं. When we talk of personality, we are factor in all these things into it, and बाद में हम decide करते हैं अगर इस लेवल पे वो इतना परफॉर्म कर रहा है, मैंने इसको एनडीए में भेज दिया, अच्छा है, गुड, एनडीए में सब कुछ है, हॉर्स राइडिंग है, ये वो है, लाइब्रेरी है, क्या करेगा, ये बहुत तरक्की करेगा. अंडरस्टूड. तो so मतलब फौज पूरा सब कुछ बेस्ट टू गिव एवरीबडी एन इक्वल चांस. Nobody is getting any priority over anybody else. ओके. तो मतलब फौज के अंदर, एसएसबी के अंदर बैकग्राउंड चेक करके उसी के हिसाब से भी जज किया जाता है कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल बहुत विलेज वाले एरिया से बच्चा आ रहा है और वो फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म करा कि उसने रिटन क्वालिफाई किया, बिल्कुल उसके बाद भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, इवन इफ उसको मुंबई जो बच्चा आ रहा है, मुंबई से जो आ रहा है, दोनों के कंपैरिजन में चाहे मुंबई वाले को ज्यादा नॉलेज होगी, बट फिर भी ये बच्चा फिर भी अपलिफ्ट होके एनडीए की एसएसबी देने आया जिसने आज तक ट्रेन भी नहीं देखा है. इसके लिए इस हिसाब. Having said that, I would like to tell you that GTO does not know anything about you. Okay. GTO को PIQ भी नहीं मिलता है. अच्छा. उसको कुछ भी नहीं देते हैं लोग एसएसबी में. Okay. GTO just works like a observer in a football ground. Okay. लोगों को आप जाते हो फुटबॉल मैच में बैठते हो, ठीक, फुटबॉल मैच में आप देखते हो फुटबॉल मैच कैसे चल रहा है, देन यू टेक अ कॉल, वो प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर थोड़ा डाउन है, ये थोड़ा मीडियम है, ये इसमें बेटर है, ये इसमें बेटर है, क्या करते हो. सो बट यू डोंट नो द प्लेयर पर्सनली, you don't know where he is coming from, what is he doing. I don't even know who is that is why we are giving chess numbers. GTO is right. So just wearing chess number, he says chess number 1 2 3 4 5 6 7 8, that's all. Everybody is equal to, no defense background, no anything. I don't know anything actually. So आप मानते नहीं हो, but लोग हमें कुछ नहीं देते. अच्छा. Only conference I come to know who is chess number 1 exactly. बिकॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास PIQ रहता है, उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, साइकोलॉजिस्ट के पास PIQ रहता है, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कर लिया है. सो ओनली इन द कॉन्फ्रेंस आई कम टू नो, अच्छा ये फौजी बेटा है. ओके. I already finished my testing and I have already submitted my recommendation. Okay. So there is absolutely no fear. Everybody gets equal chance and nobody gets extra chance. Nobody is given any special privilege, etc. in the SSB. Nobody else needs to have any doubt on that. Okay. सर CPSS के बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि CPSS के लिए बच्चे को कैसे तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव बीन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, तो आप थोड़ा सा हेल्प करें कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, व्हाट आर दी डूज, व्हाट आर दी डोंट्स, जिससे एक बच्चा अगर पायलट बनना चाहता है एयरफोर्स के अंदर तो उसको हेल्प मिले. CPSS में दो पार्ट्स है. एक तो फर्स्ट इज योर कॉग्निटिव पार्ट, वेयर यू आर गिवन ऑन द क्विक टाइम मैथमेटिक क्वेश्चन आते हैं, लाइक NDA एग्जाम आप जो देते हो. But only thing is there is a speed involved in that. There is a speed involved. You will have to quickly do calculations. Then there are other general knowledge type of questions which you are training. First triangle is like this, second triangle is like that, third triangle is like that. So उसके लिए तो आप बहुत सकते हो, उस type के questions है, and it is all about logic. It is all about your mathematics ability. It's all about your English ability. And इसको तो बिल्कुल आप ट्रेनिंग कर सकते हो. दूसरा पार्ट है साइकोमोटर एबिलिटीज. साइकोमोटर क्या है, आप यू आर अ बैट्समैन, सो यू हैव टू लुक एट द बॉल एंड योर हैंड शुड ऑटोमेटिकली गो एंड हिट द बॉल, करेक्ट. सो दैट इज अ एबिलिटी व्हिच इज इनबॉर्न. आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन यूज अ फ्लाइट सिमुलेटर in your Microsoft Flight Simulator is there. You can keep training on that. If you keep playing video games, अगर आपका साइकोमोटर में दिलचस्पी है, अपने आप करोगे वैसे. You would have already done these things. You would have just kept playing around. If you want to become a pilot, you would have already done these things in your childhood, correct? So naturally you will have the psychomotor ability. And again, फिर
भी again I'm telling you, you need to have a bare minimum psychomotor as well as cognitive ability in order to clear. ओके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। आप जैसे लोग तो ट्रेन करते हो, यू आर ऑल ट्रेनिंग पीपल फॉर CPS, नथिंग रॉन्ग विद ट्रेनिंग, नथिंग रॉन्ग विद ट्रेनिंग, बिकॉज एटलीस्ट द कॉग्निटिव पार्ट अच्छा करेगा ना। बिल्कुल At least out of two parts, at least one part he will do much better. मच बेटर दूसरा पार्ट भी एक आइडिया दे सकते हैं उनको, मीन्स बिल्कुल ऐसे होगा, there will be a ball here, you have to turn the lever like this, don't turn very fast, turn it slowly. आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स दे सकते हैं to this thing. ओके सर, एक और क्वेश्चन, आपने बताया था कि एयरफोर्स के फाउंडिंग मेंबर आप एफकैट एग्जामिनेशन के हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता है, सर वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एफकैट एग्जामिनेशन, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है ना, सर उस कमेटी में थे इन्वॉल्व जिन्होंने एफकैट एग्जामिनेशन डिजाइन किया था। तो सर ये एफकैट मुझे समझ में नहीं आया कि यूपीएससी सीडीएस के थ्रू भी हम जा सकते हैं एयरफोर्स के अंदर, सो व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर एफकैट एंट्री? See, we have not disturbed the NDA and CDSC जो से पहले थे वो वैसे ही। वो तो है। एफकैट के पहले क्या होता था, अभी जो एनडीए बच्चे हैं उनको पता नहीं है, एनडीए और सीडीएस अभी जो यंगस्टर्स है उनको पता नहीं। उसके पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी 3 सेपरेट टेस्ट, एक तो ग्राउंड ड्यूटीज के लिए, एक इंजीनियरिंग ब्रांच के टेक्निकल ब्रांच के लिए, और दूसरा फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अब बच्चा को क्या, अब उस समय में इन ओल्डन डेज no engineer will go and try to become a ground duty officer or become a pilot. In fact, in my batch, there was only one boy who was an engineer, BTech. That is 25 years back. But आजकल के जमाने में a BTech student is willing to join both flying branch, is ground duty branch as well as the technical branch. अब क्या है, now this is the old system has become null and void. अगर 3 टेस्ट क्यों करना है, वो 3 बार रिटर्न लिखना है, 3 बार इंटरव्यू में अटेंड करना है, 3 बार मेडिकल अटेंड करना है, किस लिए? सो वी कंबाइंड ऑल ऑफ देम एंड ब्रॉट इट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज एफकैट। वी हैव नॉट डिस्टर्ब्ड योर एनडीए एंड सीडीएस एंट्रीज, एनसीसी एंट्री, वो तो वैसे की वैसी है, वी हैव नॉट चेंज्ड इट। इन एडिशन वी हैव जस्ट कंसोलिडेटेड दिस होल थिंग। इन एडिशन आई वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन पुटिंग दिस portal for online application for AFCAT. I have a certain amount of knowledge on computer, this thing, so like now everything is online. You can select your, you can apply online, you can go about selecting your SSB center online, you can choose your date, ek date mein right. Commitment, you can choose another date, right. Thereafter you can go for your medical, and then even the merit list is now computerized. Right. All these things are fed into your computer, and the computer tells the officer who is to be given which branch and which Air Force Academy mein which branch. It makes a own merit list based on all the inputs. Okay. AFCAT marks, SSB marks, medical standards, educational qualification, सब कुछ factoring करता है। ये logarithm जो बोलते हैं ना आजकल, which is everybody talks of algorithm, Google algorithm. Right, algorithm. So yeah. Okay sir, thanks a lot. अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। I hope students को भी बहुत अच्छा लगेगा जब उनके doubts clear होंगे। Okay sir, thank you and जय हिंद sir. जय